चंचलता श्री जय जय दी श्री जय जय दी श्री जय जय दी विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय श्री जय जय दी विश्वविद्यालय. Every day holds a surprise for us. We should not be afraid to reach each day's surprise, whether it comes to as a sorrow or a joy. To it open a new places in our heart. Well, today we have lot of surprises for the beautiful audience who have present here. जो घर चलना हो साथ तो अपना हाथ बढ़ा दीजिए. जो घर चलना हो साथ तो अपना हाथ बढ़ा दीजिए. हो घर मन में प्रेम तो फिर मुस्कुरा दीजिए. है आज हमारा क्या पता कल हो ना हो. है आज हमारा पता नहीं कल हो ना हो. कोई गीत हो मन में तो फिर गुनगुना दीजिए. A very good noon to our respected chairman sir Dr. Vinod Tibdewal ji, respected president sir Mr. Balkrishna Tibdewal ji, our trustees Mr. Ram Avatar Agarwal ji, Dr. Dinanath Khedia ji, Dr. Deen Dayal Morarka ji, Dr. Banmali Chaturvedi ji, Registrar ma'am, Dr. Madhu Gupta ma'am, Deputy Registrar of Finance and Admin, Dr. Aman Gupta sir, Deputy Registrar of Research, Dr. Ajit Kaswan sir, Assistant Registrar, Dr. Ikram Qureshi sir, HR, Dr. Mahesh Singh Rajput, Head Academics, Dr. Ramdarshan Fogart sir, Provost, Dr. Surendra Kumar sir, Proctor, Dr. Arun Kumar sir, and all principals, HODs, dignified teachers, and all the treasured invitees, students, and my dear friends. On the behalf of our Shri JJT family, I Cadet Anuj And I, Master Ketu Singh, we extend a very sincere welcome to all of you present here. Today is a very important day for all of us. First of all, I would like to congratulate everyone, including me, on successfully completing of 14 years. No doubt that our university expanding year by year. I heartily congratulate to all the members who have contributed to the success of the program. Such programs strengthens a wholesome development of the personality of the faculties and students. Welcome to all once again. जीवन को स्वर देती है तू, तेरी रहमत को हर जिंदगी तरसती है. तेरी सजदा करके जो चढ़ते हैं मंच पर, उनके हर शब्द में करुणा बरसती है. या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. Let's start this event by offering our prayers to Ma Saraswati to pay tribute to our Mother Saraswati personification of knowledge. For this, I request to our Honorable Chairperson Sir, Dr. Vinod Tibdewala ji, Mrs. Uma Vinod Tibdewala ji, President Sir, Shri Balkrishna Tibdewala ji. And our respected trustees, Dr. Ram Avatar Agarwal ji, Dr. Dinanath Khedia ji, Dr. Deen Dayal Morarka ji, and Dr. Banmali Chaturvedi ji. Please be on the stage. श्वेत पद्मासना
दीप बने झिलमिल तेरे चरणों में जलते हैं। तेरी रहमत के ध्रुव तारे बन पुष्प हृदय में खिलते हैं। सुख की खुशबू सृष्टि में है क्या, अंधकार हम भूल गए। ये दिव्य ओज, ये दिव्य दीवा सब तेरी कृपा से पलते हैं। May the divine power blesses all us. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। खुशियों पर मौज की कहानी रहेगी, जिंदगी में कोई न कोई कहानी रहेगी। हम यूं कार्यक्रम में चार चांद लगाते रहेंगे, घर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। We all feel proud to be the part of JZT family. Yes, we feel glad to call ourselves JZTians. It's honor to itself to celebrate the foundation day of RC JZT family on today 5th of February. गतिशील करो चरणों को, मंजिल दूर नहीं है। काल चक्र गतिमान, किसी का दास नहीं है। जीवन के हर पल को सार्थक कर डालो तुम, क्योंकि सांसों की पल भर भी विश्वास नहीं है। Now for welcome speech, I would like to call Dr. Anju ma'am. Dr. Anju ma'am, please be on the stage. मैं अंजू सिंह, आप सभी का श्री JZT विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हमारी संस्था के यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन श्री डॉक्टर विनोद टिमरेवाल सर, राम अवतार जी अग्रवाल, बनमाली सर, मुरारका सर, दीनानाथ गेटिया सर, डॉक्टर SK यादव और यहाँ जितने भी फैकल्टी, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, मैं उन सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। और एक शैक्षणिक संस्थान की नींव का विचार हमारे लिए वाकई कितना प्रेरणादायी रहा है। जिस वृक्ष को 14 वर्ष पहले श्री राजस्थानी सेवा संघ के चेयरमैन श्री डॉक्टर विनोद टिमरेवाल साहब ने अपनी टीम के सहयोग से लगाया था और आज वो एक बड़े वृक्ष के रूप में हमारे सामने है। और मुझे लगता है कि आज के दिन के महत्व और मूल्य के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने खुद JZT सॉन्ग में उसके अचीवमेंट्स को देखा है और कल और भी उसकी डॉक्यूमेंट्रीज आपको दिखाई जाएंगी। आप सब यहाँ आकर कितने खुश हैं, ये सब मैं बहुत उसके लिए मैं सबको धन्यवाद देती हूँ। और आज हम सभी अपनी संस्था के लिए और इस विश्वविद्यालय से जुड़े सभी सदस्यों को हमारे विश्वविद्यालय के 14 वर्ष पूरा होने के लिए बधाई देती हूँ और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करती हूँ। अब खाली कुछ लाइनें हैं, हमें धन्यवाद देना है कि जैसा कि हमको पता है कि पिछले कुछ महीनों में हम बहुत कठिन समय से गुजरे हैं और हम सबके सहयोग से आज ये दिन देख पा रहे हैं। तो रेले नहीं मेले नहीं, रेले नहीं मेले नहीं, रिक्शे नहीं ठेले नहीं, जीवन की रेल पेल में एक ऐसे पल तो कभी झेले नहीं। धन्यवाद है उन सबको जिन्होंने हमारा जीवन आसान किया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको सबका मान मिला। टीचर्स, डॉक्टर्स, नर्स, सफाई कर्मी हो या सैनिक वर्दी वाला, दूध सब्जी बिजली पानी या हो टीवी रेडियो पेपर वाला, डाल के खुद को खतरे में हम सबका सम्मान किया और जीवन हमारा आसान किया। लास्ट में कोरोना में हमने बहुत अच्छे से सबने अपने आप को संभाला, तो उसके लिए सेव एनवायरनमेंट, आने वाले समय के लिए हमें अपनी जो भी खाती है उसको संभाल के रखना है। सेव एनवायरनमेंट, सेव वाटर, सेव प्लांट्स एंड हाइजीन, जो हमने कोरोना के समय में साफ सफाई को अपनाया था उसे हमें आगे तक करके लेके जाना है। और मैं एक बार फिर से सभी को हृदय से धन्यवाद और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much, ma'am, for your kind speech. Now it's time to know about our university, our chairperson sir, and the most important, the journey of our beautiful campus. So for this, I would like to call Mr. Arun Pandey, sir. Mr. Arun Pandey, sir, please join us on the stage and help us to know the dreams and the beautiful journey of our university. सबसे पहले मैं अरुण पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे चेयरपर्सन डॉक्टर विनोद टिमरेवाला, बनवाली सर, राम अवतार सर और सारे जितने मेंबर्स हैं हमारे और हमारे सीनियर्स, सबका मैं स्वागत करता हूं।
और उसके पहले एक बार आवाज लगा दे, जेजेटीएन जिंदाबाद, जेजेटीएन, जेजेटीएन। ये आप जेजेटीएन हैं जिसकी वजह से हम लोग आज इस अच्छे अवसर पर बैठे हुए हैं। और आज जहां पर हम लोग बैठे हैं इसकी जर्नी बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस सेंस में कि एक वीरान जगह पर अगर ऐसा परिसर दिखता है तो लगता है अचानक, अरे ये किसकी कल्पना होगी, किसकी सोच होगी, और उस सोच को आगे कैसे उन्होंने बढ़ाया, और तब आज ये मुकाम हासिल हुआ है जहां हम लोग इतने अच्छे परिसर में बैठे हैं, वैसी जगह पे जहां से शिक्षा लेकर पूरे विश्व में आज हमारे एलुमनाई कहां कहां नहीं सेट हुए हैं और नाम कर रहे हैं इस जेजेटी में। तो उस यात्रा की शुरुआत कहां हुई, ये थोड़ा सा हम एक फोकस डालना चाहते हैं, थोड़ा सा आप लोगों के उन यादों को भी और तरोताज़ा करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं उस हद तक जानते होंगे, बस उन यादों को हम तरोताज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं इस विश्वविद्यालय की जर्नी। 2005 की बात है। 2005 में एक शिक्षाविद, समाज सेवी डॉक्टर विनोद टिबड़ेवाला जी मुंबई में रहा करते थे, और वहाँ भी उनका स्कूल कॉलेज सारी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि शिक्षा में इनका शुरू से ही बहुत रुचि थी कि सारे लोगों को शिक्षित करना, जमीन से जुड़े लोगों को भी शिक्षित करना। तो 2005 में वसुंधरा राजे जी मुंबई गई थी किसी प्रोग्राम में, और वहाँ इनकी मुलाकात हुई। चेयरमैन सर हमारे थे वहाँ पे, और बातचीत ऐसे ही होने लगी कि आप राजस्थान के हैं, आप वहाँ भी शिक्षा का प्रसार क्यों नहीं करते हैं। इनकी इच्छा थी बहुत पहले से, लेकिन एक वो कहते हैं ना कि मौका अचानक हाथ लगा, आनंद फानंद में वो वहाँ से मुंबई से यहाँ आए, और उसके बाद सारे कागजी क्रियाकलाप के बाद ये लोग, सर इनकी टीम, कुछ लोग जमीन ढूंढने की शुरुआत की कि जमीन कहाँ पे होगा। बड़ा दिलचस्प ये जर्नी जो रहा है ना इनका, इस विश्वविद्यालय का बहुत हसीन जर्नी रहा है, बहुत अच्छा रहा है, खुशनुमा रहा है। तो जमीन खोजने की शुरुआत हुई गवर्नमेंट की तरफ से। सही लाल मीणा जी उस समय डीएम थे यहाँ पे, उनसे जाके ये लोग मुलाकात किए, वो जमीन अलॉट करने की बात करने लगे। और आप लोग को जानकारी होगी, हमारे चेयरपर्सन डॉक्टर विनोद टिबड़ेवाला की जो जीवनी है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी कि ये संस्कारों को बहुत साथ में लेकर चलते हैं, अपनी पुरातन संस्कृति को साथ में लेकर चलने में विश्वास रखते हैं, और सबको साथ चलाने पर भी विश्वास रखते हैं। तो घटनाक्रम ऐसे ही हुआ कि लोग जा रहे थे, जमीन देखते हुए 2 जगह जमीन देख ली गई थी, और जस्ट इसके सामने से इनकी गाड़ी गुजरी, और अचानक एक गाय वो रंभा दी। अब ये आवाज, सर को ये लगा कि नहीं, ये गौ माता हमें यहाँ बुला रही है, ये स्थान हमारे लिए उचित है, सही है, जहां से हम अपनी सोच की यात्रा शुरू कर सकते हैं। और तुरंत ही ये जहां जेजेटी विश्वविद्यालय आज है, ये जमीन अलॉट कराया गया, और फिर उसकी यात्रा शुरू हुई। मैं फिर से बता दूं कि इनको कोई जरूरत नहीं थी। मुंबई में जितने बड़े कारोबार इनके चल रहे हैं, फैक्ट्री चल रही है, शिक्षा के संस्थान चल रहे हैं, जरूरत नहीं थी। लेकिन जानते हैं, परोपकार की जो चीजें होती हैं ना, वो बहुत बचपन से दिख जाती है कि मन में समाज के लिए क्या करना चाहिए हमको, उसकी बेचैनी। और उसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, चूंकि ये मेरा सौभाग्य रहा कि चेयरपर्सन के साथ बहुत सारी बातें करने का हमको मौका मिला था, साथ रहने का मौका मिला था। और हम चूंकि मीडिया से हैं तो हम लोग की प्रवृत्ति होती है कि बहुत सारी बातें नॉक करके निकालना। तो उसमें एक बहुत अच्छा आपको लगेगा, एक घटनाक्रम बता रहे हैं कि जो प्रवृत्ति वो दिख जाती है बचपन से कैसे। तो सर से ऐसी बात हो रही थी, बचपन में ये जूता पॉलिश करते थे, बड़ा अजीब लगा होगा सुन के। यकीनन ये घर के सारे मेंबर्स जितने थे ना, उनके जूते की पॉलिश किया करते थे। और पता है क्यों? वो पॉलिश करने से इनको 20 पैसे 25 पैसे मिला करते थे।
अच्छा लगता था, किसी भी बच्चे को मिलेगा जाके टॉफी खा लेगा, समोसा खा लेगा, जलेबी खा लेगा, मिठाई खा लेगा। अब मानसिकता देखिए, जिसको कहते हैं कि बचपन से बहुत सारी चीजें परिलक्षित होने लगती हैं कि आपकी विचारधारा क्या है, सोच किस तरफ जा रही है। तो वो 20 पैसे 25 पैसे जो जमा होते थे ना, वो महीने में जमा करके सारे पैसे को ये अपने स्कूल में टीचर को दिया करते थे। और टीचर को किस लिए दिया करते थे कि इनका कहना था कि जो गरीब बच्चे अपनी फीस नहीं भर सकते हैं, ये पैसे आप उनको दे दिया। ये आप जिस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं उसके चेयरपर्सन की कहानी है, जीवनी है, जिसको इन्होंने बचपन से जिया है। ये आप लोग के लिए भी हम बेशक समझते हैं कि बड़े गर्व की बात होगी। ऐसी मानसिकता, ऐसी ढेरों कहानियां, आज शायद उतना वक्त नहीं है जितना टाइम फ्रेम बना हुआ है, लेकिन वैसी ढेरों कहानियां जो किसी को भी सुनने के बाद अभिभूत कर सकता है, इनके प्रति अपने प्यार को, अपने सम्मान को बहुत सहज तरीके से, स्वाभाविक तरीके से दर्शाने की बात सोच सकता है। तो इनकी बहुत सारी ऐसी ढेरों कहानी है। और आज उसी का नतीजा है कि जब ये 2005 में वो जमीन ले ली गई थी, तो उस समय पूरी तरह ये बंजर जमीन थी। और बंजर जमीन भी नहीं, ऊबड़ खाबड़ टीले हुआ करते थे। 2006 के बाद ये जर्नी शुरू हुई, ऊबड़ खाबड़ टीले हुआ करते थे। और उसके बाद उसको समतल करने के लिए हर दिन 30 ट्रैक्टर, रात दिन 30 ट्रैक्टर लगे रहते थे और जमीन को समतल किया गया। लोग पहले ही ऐसे छोड़ देते थे। लोग इनको भी बोलते थे, इनके अपने लोग बोलते थे, इनके दोस्त यार बोलते थे, और बेशक इनके शुभचिंतक भी बोलते थे। लेकिन जोश और जुनून जहाँ आगे बढ़ता है, कोई भी तूफान रोक नहीं पाता है। तो लोग इनको बोलते थे कि क्या पागलपन है, कहाँ जाके कर रहे हो, वहां पे कैसे विश्वविद्यालय चलेगा, किस सोच के तहत आगे बढ़ रहे हो। और इनके एक मित्र से हमारी बात होती थी, चूंकि इसकी कहानी जानने के लिए बहुत सारे लोगों से हमको बात करनी पड़ी। तो इनके एक मित्र से बात होती थी और ये लोग यहाँ पर एक टीम का शेड डालकर, चेयरपर्सन डॉक्टर विनोद टिबरेवाला, इनकी कुछ टीम और इनके कुछ मित्रगण शेड डालकर वहाँ पे रात भी गुजारते थे। उस गर्मी के दिन में, आज के डेट में जलवायु परिवर्तन थोड़ा हो गया है कि हम लोग थोड़ी ठंडक भी महसूस करते हैं, लेकिन उस वक्त में उतनी गर्मी में भी टीम का शेड डालकर उसके नीचे रह के, और तभी लोग की बातें होती थी। और बातें क्या होती थी, बोला जाता था कि विनोद, सब लोग तुमको इतना बोलता है कि क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, अभी भी सोच लो ठीक लग रहा है क्या। तो उस समय गाने की एक बड़ी अच्छी लाइन हुआ करती थी, शुरू की ही लाइन बहुत अच्छी है, बाकी की भी लाइन है। तो ये अपने फ्रेंड से बोला करते थे कि अब चाहे सर फूटे या माथा, यारा मैंने तो हाँ कर। और ये लाइन सिर्फ ये नहीं दर्शाता है कि गाने के बोल हैं, इस गाने के बोल के पीछे वो मन स्थिति कितनी सुदृढ़ होगी कि लोग कुछ भी कहें। अगर हम अपने क्षेत्र के लोगों को शिक्षित करने के लिए कुछ ठान लिए हैं, हमको शेड पे रहना पड़े, जमीन पे रहना पड़े, हम करेंगे। और अचानक खींच के अगर हम लाते हैं उस 2006 को यहाँ पे, आप लोगों को लगता होगा कि एक स्वर्ग में बैठे हुए, कितना अच्छा वातावरण लगता है। तो खैर जर्नी शुरू हुई, वो जर्नी शुरू हुई 2009 में। ये बिल्डिंग एक मंजिले की बनकर तैयार हुई, ये देख रहे हैं आप लोग ना। इस तरह से ये सारी जर्नी शुरू हुई, धीरे धीरे करते बढ़ते बहुत सारी कठिनाइयों को ये लंबा वक्त यहाँ पे गुजारते थे। और ये जर्नी जब शुरू होती गई, इस तरह से बिल्डिंग बढ़ती गई, और 2009 में एक मंजिला बिल्डिंग बनकर तैयार हुई। एक मंजिला बिल्डिंग बनकर तैयार हुआ, और उसके बाद बहुत सारे लोग यहाँ से जुड़ते गए, स्टूडेंट यहाँ से जुड़ते गए। आज जिसको हम एलुमनाई कहते हैं, वो सारे लोग धीरे धीरे 2009 से जो उनकी यात्रा शुरू हुई, उसके बाद अनवरत यात्रा, और ये चलते चलते जब एक मंजिल पर आई, फिर 2 मंजिल, और उसके बाद फिर आज जो आप परिसर देख रहे हैं, इसकी भी बहुत अच्छी यात्रा है।
और ये सिर्फ संभव हो पाया है ना, ये आप लोगों के साथ की वजह से। बेशक इरादा बहुत मजबूत था, हो सकता था कि साथ नहीं भी मिलता तो चलने की जो जिजीविसा है वो इनकी बहुत बहुत मजबूत थी, बहुत मजबूत थी। लेकिन आप लोगों के साथ ने उस यात्रा को गति दी, और यह उस यात्रा की गति का ही परिणाम है कि आज इतनी लंबी यात्रा करके ये एक मंजिला पहले बना, दूसरा मंजिला शुरू होने लगा, और फिर आज आपके सामने सारी चीजें हैं। और करते 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 बहुत सारी प्रशासनिक कठिनाइयां भी आई, क्षेत्रीय कठिनाइयां भी आई, सामाजिक कठिनाइयां भी आई और पारिवारिक कठिनाइयां भी आई। कहानी बहुत लंबी है। राजधानी सेवा संघ से शुरू होता है वो जर्नी, और आकर उसमें से बहुत सारे काम करके श्री जेजेटी विश्वविद्यालय के पास आता है। इस दरमियान बहुत सारी चीजें इनकी चलती रही साथ में, और तब आज के डेट में यहाँ पे 17 इंस्टीट्यूट में 87 डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं। आप लोग बहुत गर्व की बात होनी चाहिए इनफैक्ट। और यहाँ से निकले हुए जो पीएचडी किए हुए हमारे अपने लोग हैं, एलुमनाई हैं, आज के डेट में इतने बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, इतने अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं कि समाज को वो भी एक नई दिशा दे रहे हैं। ये हम लोगों के लिए भी गर्व की बात है कि जेजेटी ऐसे लोगों को समाज में अपना योगदान देने के लिए तैयार किया। कल के डेट में आप लोगों के पास भी बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ बैठे हैं जिनके पास अपनी डिग्री होगी, और इस आज से कल डिग्री हाथ में पकड़ने तक का जो वक्त है बड़ा बेचैन कर रहा होगा आप लोगों को। वो बेचैनी एक खुशी की भी बेचैनी होती है, वो बेचैनी कि कल हमको डिग्री मिलेगा, कल हम डॉक्टरेट हो जाएंगे, डॉक्टरेट की डिग्री मिलेगी, हमको डॉक्टर मेरे साथ लग जाएगा, ये सारी चीजें। लेकिन साथ साथ पूरी जीवन आप इस 3 साल की 4 साल की यात्रा को भी अपने साथ लेकर चलिएगा, और हमेशा ही जैसे हमारे पहले के एलुमनाई आज भी हमारे साथ खड़े हैं। आप प्रण लीजिए कि श्री जेजेटी विश्वविद्यालय ताउम्र आप वैसे ही साथ चलेंगे। ये जैसे अपने विकास की यात्रा में बढ़ रहा है, सामाजिक कार्यों के साथ बढ़ रहा है, क्षेत्रीय लोगों को साथ लेकर चलने की मंशा के साथ बढ़ रहा है, आप लोग भी हमेशा उसमें योगदान अपना देते रहेंगे, विश्व में कहीं भी रहेंगे। और उस मंशा के लिए हम आपसे फिर एक बार तालियों की गुजारिश करते हैं। इसके साथ अभी रिसेंटली BMYC बहुत कम जगह राजस्थान में है, श्री जेजेटी विश्वविद्यालय को मिला, और अब उसके कोर्स चालू हो रहे हैं, चालू हो चुके हैं। उसमें सिर्फ चालू नहीं हुए, उसके एडमिशन शुरू हो चुके हैं, बहुत सारे एडमिशन हो गए हैं, और 100 सीट बहुत कम जगह पे है, 100 सीट स्कूल में श्री जेजेटी विश्वविद्यालय में। तो चेयरपर्सन आप देखते होंगे, अभी एक और भी चीज हम देख रहे थे, बात पर्सनल तो नहीं कहेंगे, इसलिए पर्सनल नहीं कहेंगे कि चेयरमैन के व्यक्तित्व के साथ हमारे जेजेटी यूनिवर्सिटी के परिवार के जितने भी सदस्य हैं, चूंकि हम लोग इनको एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में देखते हैं, इसलिए कल की एक बात बता रहे हैं। एक थेरेपी होती है, एक्वा थेरेपी, ठीक है सर। डेली मॉर्निंग में, आज भी मॉर्निंग में उठते हैं तो कम से कम 1.5 घंटे वॉक करते हैं, और वॉक करते हैं तो चूंकि साथ में हम रहते हैं, वॉच करते हैं कि वॉक कर रहे हैं तो क्या, तो एक एक चीज पर इनकी नजर होती है कि ये यहाँ पे दाग लगा है, कैसे ठीक करवा जाए, अच्छा वहां पे ये हो गया है, तुरंत किसी को बुलाते हैं, ये करवा देना, वो करवा देना। ये त्वरित तरीके से किसी चीज की कार्रवाई करने की प्रवृत्ति जो है आज इतनी तेजी से आगे बढ़ाने के रास्ते प्रशस्त करती है। और उसके बाद तो मॉर्निंग में घूमने के बाद ये एक्वा थेरेपी ले रहे थे। एक्वा थेरेपी थोड़ा टफ होता है फिजिकली, लेकिन कल जब हम इनके फोटो शूट कर रहे थे, वीडियो शूट कर रहे थे ना, उस समय देखे कि कितने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ ये एक्वा थेरेपी ले रहे हैं, जो वाकई टफ होता है। स्विमिंग पूल में जाकर और उसमें एक्सरसाइज करना, ये मनोवृत्ति को आपके दर्शाता है कि आप अंदर से कितने मजबूत और आज भी किस स्तर पर जिंदा है। और जो जिंदा होता है मन से ना, वही दूसरे को जिंदगी देता है। आप भी समझिए। यही सब कारण है कि हम लोगों को जितने जेजेटी परिवार हैं,
हम लोग को हर पल एक ज़िंदगी का एहसास होता है कि ज़िंदगी मिल रही है, इसलिए कि शुरुआत कहाँ से हो रही है, साथ कहाँ से मिल रहा है, ये सब हम लोग की नज़र में आता है कि किसकी वजह से। मुंबई में भी बैठते हैं, हर दिन फ़ोन पर बात होती है कि आज क्या डेवलपमेंट हुआ, आज कैसे क्या हुआ। इसके साथ साथ ये मनोवृत्ति तो दर्शाती है कि आप किस तरह से आत्मिक रूप से आज भी जुड़े हैं और सारे लोगों को जोड़कर चलने की प्रवृत्ति पाले हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। एक और आपके श्री जेजेटी विश्वविद्यालय में एक और इकाई जुड़ी जो इसको और भी चार चांद लगाया। हर दिन कुछ ना कुछ अच्छी चीजें यहाँ पे हो रही है। हर दिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो खुद में कभी बैठोगे और सोचोगे तो गौरवान्वित महसूस करोगे जरूर कि आप कहाँ से स्टडी कर रहे थे। और इसलिए हमने उस समय आपसे तालियां मांगी थी, उस यकीन के लिए, उस वायदे के लिए कि जरूर कहीं भी जाना दुनिया में साथ होगा, हमेशा साथ खड़े रहेंगे। ये बहुत जरूरी है। तो एक और इकाई जुड़ी है और वो है कम्युनिटी रेडियो। कम्युनिटी रेडियो स्टेशन यहाँ पे जेजेटी परिसर में मेन बिल्डिंग में 5th फ्लोर पे आप लोगों का अपना रेडियो स्टेशन जेजेटी रेडियो जेजेटी 90.4 मेगाहर्ट्ज पर ये शुरू हुआ है। 3 दिन पहले झुंझुनू जिला के एसपी उनके हाथों इसका उद्घाटन हुआ। सर लोग हम लोग सारे लोग थे और देखकर बहुत खुश हुए थे। इसलिए भी खुश हुए थे कि एक तो हम लोग क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, दूसरे मकसद ये था कम्युनिटी रेडियो स्टार्ट करने का कि हम कोई बिजनेस नहीं करने जा रहे हैं। रेडियो बिजनेस के लिए नहीं किया गया। सर की मंशा 3 साल 4 साल पहले से प्रयासरत थे। हमारी मधु मैम रजिस्ट्रार जो है बहुत सारा कुछ लगी थी, डॉक्टर यादव सर, ये सारे लोग मिलके उन सारी चीज़ों को प्लेटफॉर्म पे लाए। और जब आ गया तो मकसद सिर्फ ये था ना कि अपने आसपास के क्षेत्र में जितने भी स्टूडेंट को हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग लोगों को, बच्चों लोगों को, यूथ को भी साथ में कैसे हम लेके चले। तो उस रेडियो की मार्फत इतने सारे वैसे प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं जो अपने स्थानीय लोगों को, क्षेत्र के लोगों को फायदा कैसे पहुंचाए, शिक्षित कैसे करे, जागरूक कैसे करे, इसके लिए एक रेडियो स्टेशन की शुरुआत हुई। और ये शुरुआत भी जो हुई ना बहुत अच्छे तरीके से। सर ने बोला था कि आपको जैसे करना है वैसे करो, अच्छी चीज होनी चाहिए। और जब कम्युनिटी रेडियो फेडरेशन ऑफ इंडिया की टीम यहाँ पे आई थी और वो सारा वीडियो फोटोग्राफ सब जो ले गए यहाँ से, तब वहाँ से कॉम्प्लीमेंट आया। बहुत जोरदार तालियां चाहिए आप लोगों की। कि कॉम्प्लीमेंट क्या आया कि पूरे इंडिया में जितने भी कम्युनिटी रेडियो है उसमें नंबर 1 पर कैटेगरी। ये आपका अपना जेजेटी रेडियो, ये आपका अपना। और सर की मंशा अगर ये है कि क्षेत्रीय लोगों को शिक्षित जागरूक हम लोग इसकी मार्फत करें, तो हम लोग प्रोग्राम भी वैसे ही बना रहे हैं। नारी एक शक्ति, बहुत अच्छे लोगों के प्रोग्राम बाइट उसमें लिए जा रहे हैं। नारी एक शक्ति जो अगर शिक्षित होती है तो किस तरह से पूरी दुनिया को चला सकती है, वैसे प्रोग्राम। और यहाँ की लड़कियाँ सुने और आगे बढ़े। लड़कियों को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे 50% उनकी फीस में ऑफ किया गया है, माफी दी गई है 50%, इसलिए कि लड़कियाँ आगे बढ़े। बहुत सारी लड़कियाँ जो पारिवारिक रूप से बहुत सक्षम नहीं थी, मॉनेटरी रूप में फाइनेंशियली सक्षम नहीं थी, उन लोगों को यहाँ पे फ्री में शिक्षा दिया गया है। अपनी नज़र के सामने हम एक घटना देखे थे कि एक जगह बैठे थे और वहाँ एक लड़की आई किसी सज्जन के साथ और बोले कि सर ये +2 की है लेकिन इसके आगे पढ़ने के पैसे नहीं है, पिछले साल के आगे पढ़ने के पैसे नहीं है। तो सर अचानक पूछे कि क्या करना चाहती, तो बोले कि इंजीनियरिंग। तो बोले कि इंजीनियरिंग करना चाहती हो, ठीक है, कला के एडमिशन ले लेना और तुम फीस मत देना, कुछ भी मत देना। मतलब 10 सेकेंड के अंदर 3-4 लाख रुपए तुरंत माफ कर दो। ये सोच रखने के लिए और तुरंत उस सोच को उजागर कर देने के लिए, बोल देने के लिए अंदर वो प्रवृत्ति होनी चाहिए जिसको बार बार हम बोलते हैं कि आप कैसे किसी की तरफ करने के लिए सोचते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं इनके साथ रहने पर जानकारी मिली है। और कल आप लोगों का प्रोग्राम ये हो रहा है, तो इसमें जितने सारे लोगों को डिग्री मिलेगी ना, उनके लिए हम अग्रिम शुभकामनाएं आपको दे रहे हैं, विश्वविद्यालय की तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं दे रहे हैं।
और अपने रेडियो में आप लोग जो भी प्रोग्राम देना चाहते हैं, चूंकि सबको साथ में मिल के चलना होगा, नारा ही है अपने देश का कि सबका साथ सबका विकास। तो इस नारे के साथ अगर आप लोग भी चलते हो तो अपनी यूनिवर्सिटी के साथ भी वैसे ही चलो कि हर एक क्षेत्र में आप सोचो किसके साथ और क्या किया जाए कि इसका नाम वहाँ पे हो। इसलिए कि हम सब JJTN हैं। हम सब क्या है? JJTN है। और इसके आगे के प्रोग्राम के लिए हम फिर अपने दोस्त को बोलते हैं कि आगे कौन सा प्रोग्राम करेंगे, और एक बार फिर अपने चेयरपर्सन के लिए हम चाहेंगे कि इनके इतने अच्छे विचार और इतनी अच्छी जर्नी के लिए एक बार जोरदार थैंक यू आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। Please give a big round of applause. Now it's time to know about our university, and we successfully did that. दिलों में विश्वास पैदा करते हैं, मन में कुछ एहसास पैदा करते हैं। मिट्टी के तो कुछ बात ही अलग है, ईश्वर तो पत्थर में भी एहसास पैदा करते हैं। We are extremely delighted to have with us our chairperson sir, Dr. Vinod Tibrewal sir. You do not need any introduction. A renowned, noble, young preceptor, figure of knowledge who made us feel proud on this eminent presence over here. Sir, you are inspiration for us. I would like to call our chairperson sir, Dr. Vinod Tibrewal ji. Please give a big round of applause for him. हमारी ये यूनिवर्सिटी की 14 साल की जर्नी कैसी रही, इसके बारे में आपको बतलाया गया। ये वाकई एक बहुत हार्ड वर्क था और इसको करना ऊबड़ खाबड़ चीज़ों में और ये सब में वाकई एक बहुत प्रयत्न का कार्य था, लेकिन परमात्मा की कृपा से हमारे राजस्थानी सेवा के उनके सदस्यों की मेहनत से ये काम पूरा हुआ है और आगे भी जर्नी चालू है। तो हम चाहेंगे कि आप सबका साथ जिस तरह हमें पहले मिलता रहा, आगे भी मिलता रहे और JJT हमेशा आगे ही आगे बढ़ती रहे और तब तक बढ़ती रहे जब तक देश की अच्छी यूनिवर्सिटियों में इसका नामना शुरू है। आप सब लोगों का जीवन सुखमय और मंगलमय हो, ऐसी मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। और आप सब आज इस फाउंडेशन डे के प्रोग्राम में आए, उसके लिए आपको मैं मेरी तरफ से नमन करता हूँ। धन्यवाद। Thank you, sir, for your enriching us with your words of wisdom and dedication of your valuable times. We all have answer of this question. Fashion, not only used to protest modesty, but it is used for self-expression. We have a real fun for you today, and within few minutes, we are going to unseal the package of environment, surprises, suspense, and the fantasy. So the stage is now ready. So please put your hands together for our next performance to show the lifestyle of girl.